Yes, we surrender. Take over, Lord. Take control, Lord. Take control of our lives. Take control of our families. Take control of the situations in our lives. Yes. Yes, God. Lord, open the portals of heaven upon your people. That even in this last days, your sons and daughters will arise to stand up for you, God. स्वर्ग खोल दे पिता तेरे बच्चों के ऊपर। इस अंतिम दिनों में तेरे बच्चे तेरे लिए खड़े होंगे, तेरे नाम के लिए खड़े होंगे, तेरी महिमा करेंगे, अपनी जिंदगी से तेरी महिमा करेंगे। We shall not be afraid, Lord. We shall not fear anything, God. हम किसी से डरेंगे नहीं, हमारे परिस्थिति से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। Hallelujah. The one who has chosen you is mighty. जिसने तुझे चुना है वो महान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। Hallelujah. जिसने तुझे अभिषेक दिया है वो महान है, सर्वश्रेष्ठ है। उसने तेरे हाथों को थामा है, वो कभी तेरे हाथों को छोड़ेगा नहीं। चाहे कितना भी तूफान आ जाए, तुम्हारा परमेश्वर तेरे हाथों को कभी छोड़ेगा नहीं। लोग हमारा सिर रखिए रेखा रोबा संदा रसिए मरोखा भी सिर रखिए रोबा संदा और रवि असोत रसिए। So many of the people right now, they're receiving the love of God. परमेश्वर का प्यार तुझे तृप्ति कर रहा है। Do not hunger for the love of people. Do not hunger to be accepted by people. For the Lord has accepted you. लोग अगर तुझे नहीं अपनाते, लोग अगर तुझसे प्यार नहीं करते, ये जान लो कि परमेश्वर ने तुझे अपनाया है। ये जान लो कि परमेश्वर ने तुझसे प्यार किया है। Devantu somok kelam chuponi, devantu somok kelam chupawa. Sekramos tane basuro basireve tiele kiesho, barasie keyaswa. Jesus, Jesus, I see a mighty anointing coming upon the youth. I want all the young people here in the front right now. All the young people, all the youth come in the front right now. Come, come, come. सारे युवक लोग यहाँ पर आ जाइए. Come on, come on. शिकारिया वाला से फिरिए खेतरे. The Lord wants to anoint you in a mighty way after the anointing of the Lord. Come on, come on. Come on. Shiare maniala kia si koromashtere kia se kiriba. Rekia tekere se rekia leke. Come on, come on, come on. Kneel before the Lord. Oh, hallelujah. 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 My God, my God. Rishtania mandrosta prakesi kresheni dialebe. Osamania no manrabatia leke. Come on, kneel. Bow before the Lord. Kere baba nita sister bhi idhar aa jaiye. Parshram brother bhi idhar aa jaiye. Come on, come on. Oh, come on, hallelujah. Come on, consecrate your life to God right now. Consecrate your life to God right
सेवा करना चाहता है, परमेश्वर का अभिषेक आपको छू रहा है। My God, my God, my God. That's the anointing, that's the anointing, that's the anointing. That's the anointing upon you, that's the anointing upon you. Shikere bende ala sikere basa, kere bala kandara bashirere.
इसलिए हम हमारे हृदय को खोलेंगे। प्यार में भर दो पिता हमें, तेरी दया हमारे हृदय में आने दो, तेरा अनुग्रह हमारी जिंदगी पर, हमारे आंखें को खोल दे पिता, कि दुनिया के कोने कोने में तेरे लोग भटक गए हैं, अंधकार में जी रहे हैं, तेरे बारे में नहीं जानते। हमारे हृदय को छू ले पिता, ताकि हमारा हृदय दया में भर आए उनके लिए। Fill our hearts with compassion for the lost, for the souls. भर दे हमारा हृदय। खेत पक चुके मजदूर थोड़े, खेत पक चुके मजदूर थोड़े, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। क्या हम तैयार हैं? एक कमिटमेंट कीजिए आज परमेश्वर को। Make a commitment to the Lord by His grace that you are making yourself available to the Lord. So Lord, I am here. As the Lord spoke to Isaiah, He says, who will go for me? Who will go for us? कौन जाएगा? परमेश्वर ने आइसाया से पूछा, हमारे लिए कौन जाएगा? और आइसाया ने जवाब दे दिया, मैं हूँ यहाँ प्रभु, तो मुझको भेज। हम दूसरों के इंतजार में नहीं रहेंगे, हम दूसरों पर उम्मीद नहीं डालेंगे। परमेश्वर ने हमारे ऊपर उम्मीद डाली है, उसकी उंगली मुझ पर है, उसकी उंगली आप पर है, वो आपके साथ कुछ बात कर रहा है। Are you ready to surrender your life to the Lord? Say no to this world and say yes to the cross of Jesus Christ. दुनिया को ना बोल, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को
Soprano. लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमको उनकी परवाह नहीं है। हमको परवाह है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो परमेश्वर हमसे कहता है। Yes, Lord. Yes. Holy Spirit is here. Fire is here. Ashona rebasie rekie. Wow. आज मैं डबल अनॉइंटिंग आपके ऊपर देख रही हूँ। डबल अनॉइंटिंग upon you. Worshipper. You are worshipper of the living God. Yes. आपका हृदय परमेश्वर के सामने साफ The Lord will put you into service, my dear. You will serve the living God. What an anointing. What an anointing. What an anointing. What an anointing. पुराना सब चला गया। देखो परमेश्वर कहता है मैंने सब नया कर दिया है। मैंने सब नया कर दिया है और मैं तुझ पर ताजा तेल दे रहा हूँ। ताजा तेल। Say me fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh, fresh,
presence. उसकी उपस्थिति में हम बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में ही रहेंगे. Let's not step out of God's presence. You can sit down. Hallelujah. Praise the Lord. You come for the first time? Okay. God bless you. Where are you come from? Aldana. Welcome, sister. Praise God. Very powerful what the Lord is doing. Amen. Amen. God has a wonderful plan and purpose for His children. Hallelujah. Amazing. This year, 2021, God is going to shock many people. Many things will happen that will shock people. इस साल बहुत कुछ होगा जो लोगों को शॉक होगा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है और हमको ये भूलना नहीं है. और परमेश्वर जो चाहता है वो करेगा इन लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में. हालेलुया. There's a beautiful word that God has for you today. Amen. How many of you received from the Lord today? परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके साथ कुछ बात किया है. हालेलुया. कि परमेश्वर आपको यूज करेगा. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है. ये सच है क्या नहीं? Whatever God promises, He does it. Do you believe that? Our God is a promise keeper, a miracle worker. In fact, nobody does miracles like our God does. Hallelujah. चमत्कार करने वाला, वादों को निभाने वाला परमेश्वर हमारा है. हालेलुया. हालेलुया. जब भी परमेश्वर कुछ बात करता है, कुछ प्रोफेसीज देता है हमको बहुत खुशी लगती है. We are very excited. We are very happy, like we are today. We are so blessed with the presence of God. Amen. यीशु मसीह जब उसने बपतिस्म लिया और यॉर्दन नदी से बाहर आ गया, तो कबूतर के समान पवित्र आत्मा उस पर आ ठहरा. The Holy Spirit descended upon Jesus in the form of a dove. स्वर्ग खुल गया उस दिन. एक्चुअली स्वर्ग खुल गया और अभी तक बंद नहीं हुआ है. हम कहते हैं स्वर्ग को खोलो. एक्चुअली परमेश्वर ने ऑलरेडी स्वर्ग खोला है उस दिन. हालेलुया. Heavens opened, the Father spoke, "This is my beloved Son." पिता ने बात किया, सब लोगों ने सुन लिया. इतनी उम्मीद ना जब परमेश्वर पर ऐसा आ गया. आप पर भी जब पवित्र आत्मा आता है, अभिषेक आप पर परमेश्वर उड़ेल देता है, इतनी खुशी लगती है. It's such a privilege. ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है. हालेलुया. आपको चुन लिया है.
am I that you will choose me? मैं कौन हूँ कि आप मुझको चूज करता है आपकी सेवा के लिए? आज परमेश्वर ने almost everybody I saw, almost everyone was touched by God for service. For service. ऐसे ही नहीं, सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है. ऑलमोस्ट सब लोगों पर मैंने देखा कि परमेश्वर का अभिषेक आया है. हालेलुया. तो जब ऐसा होता है, परमेश्वर हमको एक वादा करता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो हमें कितनी उम्मीद होती है. हालेलुया. इस्राएल लोगों को भी ऐसा ही हुआ. परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुझे एक अच्छे गांव में लेके जा रहा हूं, जहां पर दूध और मधु बहता है. I am taking you to a land of abundance. I am giving you the promised land. Hallelujah. मैं तुझे वो वादा किया हुआ वो गांव, वो देश में तुझे दे रहा हूं, परमेश्वर ने उनको कहा. लेकिन हम देखते हैं कि उस देश में जाने से पहले उनको विल्डरनेस में जाना पड़ा. विल्डरनेस का मतलब क्या है हिंदी में? रेगिस्तान, जंगल. ओके. रेगिस्तान बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, डेजर्ट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान. ओके, वही. सो जंगल और विल्डरनेस, वहां पर उस देश में जाने से पहले उनको एक गांव में गुजरना पड़ा. उनको ऐसे जगह पर गुजरना पड़ा जहां पर तकलीफ आ गई उनको. Today I want to talk to you about the wilderness times. जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है, हमको बहुत खुशी होती है. जब परमेश्वर कुछ हमको वादा करता है, हमको बहुत खुशी मिलती है कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा. When God says to us that God wants to use us and He is going to use us, immediately what we see, many people see that, immediately they see a stage. No, this is the fact, right? When you hear that God wants to use you, immediately you see a stage. You see yourself standing like a pastor or like a worship leader with a mic in your hand or with a guitar in your hand or with a keyboard in front of you, and that you're going to do this. तुरंत हमारे मन में यह आता है जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुरंत हमको दिखाई देता है इमेजिनेशन में कि एक माइक पकड़ा हुआ हूं मैं और मैं स्टेज पर हूं और मैं प्रचार कर रहा हूं, या फिर मेरे कंधों पर मेरे ऑन माय शोल्डर्स आई हैव द गिटार हैंग इन हियर इन फ्रंट ऑफ मी. गिटार है या फिर हमारे सामने कीबोर्ड है, ऐसा. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है. फिर भी परमेश्वर ने किसी को पास्टर बनने के लिए, किसी को वर्शिप लीडर बनने के लिए, किसी को इवेंजलिस्ट बनने के लिए, किसी को प्रॉफिट बनने के लिए चुना है. यहाँ पर हालेलुया, चुना है. और आपके इमेजिनेशन में जो कुछ आ जाए, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे ही होगा आपके लाइफ में. हालेलुया. लेकिन वो आपको मिलने से पहले बहुत कुछ आपके लाइफ में आ जाएगा. So the children of Israel, they were promised the promised land. God promised them He is taking them to a land of abundance. But before that they were stuck in the wilderness. Say stuck in the wilderness. Stuck in the wilderness. I think this is a good thing to. This is a good topic. Stuck in the wilderness. जंगल में अटक गए वो. जंगल में अटक गए वो. जंगल में क्या था? जंगल का मतलब क्या है? रेगिस्तान का मतलब क्या है? Listen to me. आपको वहां तक, जब परमेश्वर ने कहा वहां तक लेके जाएगा, वहां तक जाने से पहले आपको जंगल में अटक जाना पड़ेगा. You have to be stuck in the wilderness for something. और ये जंगल क्या है? अकेलेपन का एक जगह है. ये रेगिस्तान, ये जंगल क्या है? जहां पर आपको प्यास लगती है लेकिन
पानी नहीं दिखाई देता, जहां पर आपको भूख लगती है लेकिन कुछ खाना नहीं दिखाई देता, आप सोचते हैं कि मुझे खाना भी है पीना भी है। ऐसा नहीं है, मैं आत्मिकता की बात कर रही हूं। एंड ऑल्सो समटाइम्स फिजिकली यू डू नॉट हैव फाइनेंसेस इन योर हैंड, आपके हाथों में कभी कभी पैसा नहीं होता है। ऐसे पॉइंट पर अब आ जाता है कि आपके पॉकेट में भी पैसा नहीं है, अकेलापन महसूस करते हैं। वी आर experiencing loneliness where our friends will leave us, our relatives will not support us, everybody keeps us alone, they start to ignore you, आपको देखते हैं और उस तरफ मोड़ लेते हैं। और यही जंगल में इजराइल लोगों को बहुत ही सहना पड़ा। क्यों? हम देखेंगे अभी। We will just go to Exodus chapter 14. Hallelujah. Hallelujah. This word amazing, beautiful. Thank you, Lord Jesus. Okay, Exodus chapter 13, Exodus 13 verse 18. Exodus 13 verse 18. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. Hallelujah. हिंदी में पढ़िए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली भाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। Amen. So उस जंगल के रास्ते में उनको लेके गए। Exodus chapter 16 now. Okay. So इस रेगिस्तान के बाद, इस जंगल के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र को दो भाग करके उनको उधर से निकाल दिया। हालेलुया। सो जब भी आपको लगता है कि आप जंगल में है, परमेश्वर उस जंगल में मार्ग निकालता है। Come on now. God is making a way for you in the wilderness. उस जंगल में से परमेश्वर ने उन लोगों को एक मार्ग तैयार किया। उस समुद्र को दो भाग करके परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल दिया। हालेलुया। सो उधर से वहां से कहां गए वो लोग? Exodus chapter 16 verse 1. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they departed from the land of Egypt. Then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. फिर एलीम से कुछ करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीनाई पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। जंगल में सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध क्या करने लगी? बकबक करने लगी, गुनगुनाहट करने लगी। हालेलुया। Amen. That's what they did. That's what they did. They started grumbling. And the wilderness is a time, is a place where people begin to grumble because they don't see what God has promised them. जंगल का टाइम ऐसा टाइम है जहां पर परमेश्वर का किया हुआ वादा हम नहीं देख सकते। We cannot see it. And they could not see it. वो देख ना पाए, वो समझ ना पाए, तो जंगल में वो अटक गए। उनको
कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और वो अपने लीडर्स के विरुद्ध बकबक करने लगे, गुनगुनाहट करने लगे। हालेलुया। और वहां पर उन्होंने परमेश्वर से एक चमत्कार देखा। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना उनको दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर और भी चमत्कार हुआ। आमेन। एक्सोडस 14 में हमने देखा है कि परमेश्वर ने उनको जंगल के मार्ग में ही निकाला था, उनको दो भाग करके वहां से दूसरी तरफ लेके आया। वहां पर भी उनकी गुनगुनाहट हो गई और यहाँ पर भी उनकी गुनगुनाहट हो गई कि उनको खाना नहीं है। Now we go to Exodus 17. And here again, verse 1, then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin according to the commandment of the Lord and camped in Rephidim. But there was no water for the people to drink. फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। तो हम देखते हैं कि पहला एक्चुअली ये सब होने से पहले उनको परमेश्वर ने एक God brought them to a body of waters where it is in Exodus 15 actually. We'll just read that, okay? Exodus 15 verse 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, okay? Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और शूर नाम जंगल में आए, okay? और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला उनको। अभी क्या हो गया? परमेश्वर ने अभी एक बड़ा चमत्कार करके उनको दरिया से बाहर लाया, दो बात करके, इतना बड़ा चमत्कार करके। तो जब वो दूसरे जंगल में आ गया, शूर जंगल में आ गया, वहां पर उन्होंने 3 दिन तक पानी का सोता उनको नहीं मिला, तो उनकी गुनगुनाहट शुरू हो गई। Verse 23 says, now when they came to Mara, they could not find the waters of Mara, for they were bitter. Therefore the name of it was called Mara. फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहाँ पानी का खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। Okay, मारा यानी कड़वा, okay? We have a song on that, right? Mara. Okay. So I don't know the tune. This one, huh? Okay, very good. तेरे कार्य आश्चर्य. Okay, thank you Lord. Now when they came to Mara, so Mara यानी कड़वा, so ये कड़वा सोता उनको मिला, कड़वा पानी, कैसे पिएंगे वो लोग? तो फिर भी उनकी गुनगुनाहट। तो मूसा ने क्या कर दिया? मूसा ने एक पेड़ को देख लिया, उस पेड़ को निकाल कर उस he took the tree and he put it into the water. So उस पेड़ को निकाल कर उसने पानी में डाला और तुरंत वो पानी कड़वा था लेकिन वो मीठा पानी बन गया। ये पेड़ दर्शाता है परमेश्वर का क्रूस, और जहां पर भी हमारे जीवन में कड़वाहट मिलती है वहां पर यीशु मसीह के क्रूस की वजह से हमको मिठास मिलती है। Everything that is bitter, रबाशोर रखिए से, hallelujah. Everything that is bitter becomes sweet because of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So शूर जंगल के बाद, ऐसा होने के बाद वो सिन ये जंगल में आ गया। वहां पर उनकी गुनगुनाहट हुई कि हमारे लिए खाना नहीं है अभी। We do not have food, we do not have bread to eat. हमारे लिए रोटी नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से उनको मन्ना दे दिया, रोटी दे दी। Hallelujah. Here also we see Jesus is our bread of life. Hallelujah. यीशु मसीह हमारी जीवन की रोटी है। Amen. Thank you Lord. So जंगल में उनको मन्ना मिला। Amen. Then again we see in
chapter 17, Exodus 17. Here again पानी का सोता नहीं है, वो फिर से गुनगुनाहट करने लगे इस जंगल में. So क्या हो गया? Verse 2 says, therefore the people contended with Moses and said, give us water that we may drink. So Moses said to them, why do you contend with me? Why do you tempt the Lord? इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे. मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? And the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी. तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? So उन्होंने मूसा से गुनगुनाहट की, मूसा के विरुद्ध गुनगुनाहट की. हाँ, जब भी कुछ होता है, आप जंगल में हैं, हाँ, आपको लीडर्स से क्यों इतना गुनगुनाहट करना है? लीडर्स आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं. सब कुछ आता है परमेश्वर के हाथों से आता है. हालेलुया, हालेलुया. मूसा के विरुद्ध गुनगुनाहट की. तो मूसा बेचारा क्या करेगा? मूसा ने एक ही था, उसके हाथों में एक ही उपाय था. वो हर एक बार एक ही उपाय करता था. जब भी कुछ तकलीफ आती थी, वही उपाय इस्तेमाल कर रहा था. वो परमेश्वर की तरफ देखता था. हालेलुया. और परमेश्वर यही चाहता है कि मूसा के संबंध हम भी यही उपाय करें. हालेलुया. कि हम हमारे लीडर्स की तरफ ना देखेंगे, हमारे परमेश्वर की तरफ देखेंगे. हालेलुया. और सब कुछ हमको उसके हाथों से ही मिलता है. प्रेज द लॉर्ड. और परमेश्वर ने उसको बोला कि एक लकड़ी को लेके जा, एक छड़ी को लेके जा, और ये चट्टान जो है, चट्टान पर मारो, और चट्टान अपने आप छिप जाएगा और वहां से पानी बहेगा. और ऐसा ही उसने किया. चट्टान पर उसने छड़ी मारी, चट्टान चीरा और पानी देने लगा चट्टान से. हालेलुया. माय गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया. जीसस इज आवर रॉक. आमेन. यीशु मसीह हमारा चट्टान है. आमेन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. सो वहां जंगल में उनको प्यास लगी, उनको पानी नहीं था, और परमेश्वर ने चट्टान को चीरकर उनको पानी दे दिया. हालेलुया. Now we go to verse Exodus 19 verse 1. जंगल जंगल, बहुत सारा जंगल जंगल. So in the third month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day they came to the wilderness of Sinai. इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सैनिक के जंगल में आए. So they had departed from Rephidim and had come to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain. और जब वे रपीदीम से कुछ करके सैनिक के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली. पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली. हालेलुया. They camped near the mountain. Praise God. Thank God for the mountain in the middle of the wilderness. Hallelujah. आपको समझ में आया कुछ? Thank God for the mountain in the middle of the wilderness. पर्वत है. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का पर्वत है. जंगल में. हालेलुया. जंगल में. Come on, this is something very deep. In the jungle, in the wilderness, God has prepared a mountain for us. It's the mountain of prayer. It's the mountain of worship. Hallelujah. आराधना का पर्वत. ये संकट का पर्वत नहीं है, ये आराधना का पर्वत, जहाँ पर परमेश्वर आपको मिलने को आता है. हालेलुया. In the middle of the jungle, in the middle of the wilderness, there is a mountain. That is a mountain of prayer. That is a mountain of worship. And all you got to do is talk to the Lord on that mountain top. Hallelujah. Hallelujah. ये सब जंगल के बारे में हम पढ़ते हैं. बहुत सारा है. There is so much there. The children of Israel were stuck in the wilderness. They were stuck there.
वो अटक गए जंगल में, और जब भी वो अटक गए, जब भी कुछ होता था, वो बार बार गुनगुनाहट करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है 11 दिन की जर्नी थी उनका। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन में वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचने वाले थे। जो वादा किया है वहां पर वो पहुंचने वाले थे। आई एम टेलिंग यू, where God has promised you, you are going there very fast, very fast. Hallelujah. अगर ये वचन आपके हृदय में आता है, आपके मन में आता है, those of you who are watching, I prophesy right now, if you hear this word, and if God has promised you something, God is not going to delay the promise that He has made for you. You are going to see what God has promised very soon. That is going to be speedy spiritual growth in your life. Hallelujah. Hallelujah. जल्दी ही आप देखेंगे जो परमेश्वर ने आपको वादा किया है। I can feel the anointing in this place. My God. Sure. Hallelujah. Hallelujah. They felt that God has forsaken them. जब उनको कुछ मिलता था जंगल में, वो उसी टाइम खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते थे। वैसे ही बहुत लोग अपने सूखे सूखे जंगल के टाइम में, जब कुछ नहीं होता, जब कुछ मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं। उसी समय थैंक यू जीसस बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वो जो चमत्कार हुआ था, वो जैसे ही खत्म होता है और कुछ तकलीफ आ जाती है, फिर से वो गुनगुनाहट करते हैं। और जब वो गुनगुनाहट करते हैं, वो अपने लीडर्स के विरुद्ध वो गुनगुनाहट करते हैं। और जो कोई अपने लीडर्स के विरुद्ध कुछ बात करता है, वो लीडर्स के विरुद्ध नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध वो बात करता है। आप भी किसी पास्टर के विरुद्ध बात मत करना। जो कोई करता है वैसे उनको करने दो, परमेश्वर उनको जज करता है। हाँ, कोई नहीं है जज करने वाला। परमेश्वर के अभिषेकता को कुछ ना कहना कभी भी, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के अभिषेकता को कुछ कहता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध कहता है, और परमेश्वर को बहुत ही दुख होता है। तो उन्होंने मूसा पर विरुद्ध कुछ बोला, लेकिन मूसा ने एक ही उपाय किया, वो वापस परमेश्वर के पास जाकर वो परमेश्वर के पास ही रोया। लोगों को अपनी आंसू नहीं दिखाया उसने सिर्फ अपने परमेश्वर को अपनी आंसू दिखाया। हालेलुया। आज परमेश्वर ये कहता है हमसे कि हमको इजराइल के लोगों के समान नहीं बनना है, हमको मूसा के समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल के लोगों को परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं था। नहीं तो हम देखते हैं एक्सोडस 19 में हम देखते हैं कि वहां पर जंगल में, सिनाई विल्डरनेस में, जंगल में वहां पर ये पर्वत था, और उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का इतना चमत्कार हो गया, इतना परमेश्वर की महिमा उतर आ गई। The glory of the Lord descended upon the mountains of Sinai। और कौन गया मिलने के लिए वहां पर? कौन गया परमेश्वर को मिलने के लिए? मूसा चला गया परमेश्वर को मिलने के लिए, क्योंकि वो ही उस समय तैयार था परमेश्वर को मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है इब्रानी में कि ये जो पर्वत था और पर्वत के ऊपर जो महिमा आई थी, वहां पर जाने के लिए लोगों को पर्वत को छुआ तो भी वो मर जाते, इतना वो पवित्र था वो सिनाई पर्वत, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां पर आ गई थी। वो छुआ तो भी वो मर जाते, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को बोलो कि पर्वत के पास मत आओ। बट माय डियर पीपल, आई एम हियर टू टेल यू, परमेश्वर ये कहता है कि उस समय और इस समय में बहुत ही फर्क है। That was the old covenant, but now it is the new covenant through the blood of Jesus Christ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको एक नया करार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर्वत के पास लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ मूसा जा सकता था, लेकिन आज यीशु मसीह के लहू के वजह से सब कुछ, सब जो दीवारें थी वो टूट गए हैं, पर्दा छीन गया है, और अभी हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कभी भी चढ़ सकते हैं, कभी भी उसको मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
गया सिनाई पर्वत पर और उसने सारा नियम उसको वहां पर दे दिया। उसने बोला कि लिखो, ये लिखो। इसलिए 5 बुक जो है, 5 बुक, पहला बाइबल के 5 बुक जो है वो सारे बुक मूसा ने लिखे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये सब कुछ दिखाई दिया, उसको दे दिया। गॉड गिव हिम सुपरनैचुरल, आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट, बट ही रोट द बुक। उसने वो नियम का पुस्तक लिख लिया और सारे नियम परमेश्वर ने उसको दे दिया उस सिनाई पर्वत पर। और जैसे वो लिख रहा था, वो परमेश्वर के साथ संगति रख रहा था। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में वो था। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो थे, जो परमेश्वर ने उनके लिए क्या कुछ किया था, वो लोग पत्थर की, सोने की मूर्ति किया उन लोगों ने, और सोने की मूर्ति को बनाकर उनको वर्शिप करने लगा और परमेश्वर को गुस्सा आ गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं रखते तो आप आपके लिए एक मूर्ति तैयार करते हैं। आप समझते हैं और आप कहेंगे, सोचेंगे कि मैं एक मूर्ति नहीं बना रहा हूं, मैं मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन हम कितना कुछ मूर्तियां बनाते हैं हमारे लिए। सोशल मीडिया पर हम कितने समय बिताते हैं, न्यूज देखने के लिए हम कितना समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ हम कितना कम समय बिताते हैं, और हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के इंटरटेनमेंट्स के लिए हम कितना कुछ करते हैं। और ये हमारे लिए हम एक मूर्ति बना लेते हैं। जब भी जंगल में आते हैं, when you are stuck in the wilderness, you get distracted very easily. Are you getting this? This is very deep. Listen to me. When you are in that wilderness, you get distracted very easily. कुछ नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा है कि मुझे वो वहां पर लेके जाएगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है। Even God said to Abraham, I'm giving you the land of promise. I'm giving you many children. Count the stars if you can. अगर आप गिन सकते हो उस सितारों को तो गिन लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। और उसको उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। Nothing he saw at that moment. Stars? You want me to count the stars? I don't even have one child. मुझे एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, मैं तुझसे देश को उत्पन्न करूंगा। I am going to bring out nations out of you. And Abraham must be thinking, God, I don't even have one child. But God said He will do it. And if God says He will do it, He will do it. Hallelujah. He will do it. Because He is God all by Himself. He doesn't need any help. Hallelujah. So अब्राहम को दिखाई नहीं दिया। उसको लगा कि मैं एक जंगल में जैसा हूँ, विल्डरनेस में जैसा हूँ, कुछ नहीं होता है। So he waited, and when he was 75 years old, God had spoken to him. Nothing is happening, and then his wife tells him, nothing's going to happen. कभी लोग जंगल में हमको लोग भी ऐसे मिलते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला तेरा, क्या बोला था परमेश्वर ने, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करो ना, ऐसा करेगा तो वैसा करे, वैसा मिलेगा आपको। Then people come and give you their stupid counsel and their stupid advice which is not in line with God. जो परमेश्वर ने कहा है उन लोगों ने सुना नहीं है। अपने मन की कल्पना से वो आपको कुछ कहते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, लेकिन सब अच्छा एडवाइस परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है। I'm speaking to somebody here. All good advice does not come from the heart of God. Maybe it is a good concern of your friend that he is telling you or she is telling you, oh sister you do this and brother you do this, because they are concerned about you, but they have not heard from the Lord. Are you getting this? उन्होंने परमेश्वर से सुना नहीं है, वो सिर्फ अपने कंसर्न से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आप, ऐसा नहीं करना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से सुना नहीं है। So they come and give you this advice which is wrong. And Sarah spoke to Abraham saying that, oh, when will the son of promise come? Now here, take my maid Hagar. मेरे maid को हमारे जो servant है हमारे घर में, उनको ले लो, अपनी बीवी बनाओ, और उसमें से जो आएगा वो संतान वो आपकी होगी। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको कहा है वो करेगा, परमेश्वर को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आपकी ओबीडियंस की जरूरत है। He doesn't need your help.
He needs your obedience. Let me say that God does not need your help. He needs your obedience. सिर्फ उसके वचन का पालन करना है. God said to Abraham, wait. And Sarah said to Abraham, hurry up. और अब्राहम ने उनका सुन लिया, इसलिए इश्माएल पैदा हो गया. और इस तरह हमारे जीवन में, हमारे इस जंगल में, हमारे भटके हुए जिंदगी में हम कभी कभी इतना गुनाह करते हैं, इतना गलतियां करते हैं कि हमको पता नहीं चलता. हमारे आत्मा का हम नहीं सुनते, हमारा फ्लैश का सुनते हैं, इसलिए हम गलतियां करते हैं. इसलिए ये 11 दिन की जर्नी जो है, ये शॉर्ट जर्नी जो है, हमको देर लगती है प्रभु का आशीष पाने के लिए. परमेश्वर ने कहा, ये इश्माएल मेरा वादा किया हुआ है नहीं है, ये आपने उसको अपने फ्लैश से, अपने कल्पना से किया है, लेकिन जो आएगा वो मेरी प्रॉमिस है, आपके और सारा के बीच में से ही आएगा. हालेलुया. और जब अब्राहम ऑलमोस्ट 100 years old था, 99 and above he was, at a time, listen very carefully, at a time when his body was not functioning normally, वो बूढ़ा हो गया था और सारा का वो गर्भ जो था वो सूख गया था और संभव ही नहीं था कि उनको एक बच्चा होगा. लेकिन उस समय परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दे दिया. हालेलुया, हालेलुया. My dear people, what is God trying to say? जंगल में इजराइल लोग भटक गए. इतने साल, 40 साल वो भटक गए. 40 साल. They were stuck in the wilderness for 40 years. But God was so good to them. Listen to me. God was so good to them. And they grumbled and they said, we don't have bread. God gave them bread from heaven. When they grumbled and they said, we don't have water, God gave them water. On their journey, God was good to them. Hallelujah. When they said they don't have meat, हमको मांस खाने को नहीं मिलता, गुनगुनाहट की, फिर भी परमेश्वर ने उनकी दया की. लेकिन हर टाइम वो गुनगुनाहट करने लगे, परमेश्वर को क्रोध आता था, गुस्सा आता था. मूसा के वजह से परमेश्वर ने उनको कुछ गलत नहीं किया. बहुत टाइम परमेश्वर को गुस्सा दिलाया लोगों ने इन द विल्डरनेस. फिर भी परमेश्वर की दया से, क्योंकि वो उनको रास्ता मालूम नहीं था, परमेश्वर ने रात को अग्नि का खंभा भेजा उनके लिए, रात को उजाला रोशनी देने के लिए, और दिन में बादल भेजा उनको धूप से छाया मिलने के लिए. For them to be shielded from the heat of the day, God gave them a cloud, and in the night He gave them a pillar of fire to light their way. Hallelujah. 40 साल. फिर भी उन्होंने गुनगुनाहट की परमेश्वर से. फाइनली when they were about to enter the land, जब वो वहां तक जाने वाले थे, तब मूसा ने 12 लोगों को भेजा उस देश में, कनान देश में. He sent 12 spies to spy out the land. कैसा है ये? दूर से दिखाई देता था, लेकिन कैसा है इन लोगों को पता नहीं था. लेकिन परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे वो देश दे रहा हूं. God has said, I am giving you this land. Hallelujah. So ये 12 जन वहां पर पहुंच गए और 12 जन वापस आ गए. लेकिन 10 जो वापस आ गए वो बोलने लगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा गांव है. एक द्राक्ष इतना बड़ा था, एक बंच द्राक्ष का 2 लोग ऐसा लकड़ी पर डालकर लाए वो लोग. Just a bunch of grapes they were putting on the stick, and they were carrying one bunch of grapes on the stick, and they were, can you imagine such a beautiful land? सब कुछ अच्छा था. 10 लोगों ने बोला सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये लेकिन होता है. But it's all good. बरे हारे सगळे तू बोलता ते बरे हारे, पण जेतो लोक हरे, तू खातो लोक हरे. बरे हारे तू देवाची सेवा करता, बरे हारे तू मिनिस्ट्री करता, तू जेतो लोक हरे, खातो लोक हरे. हाँ, काम करना है, पोट भरून नका. भुरग्या बाळांक कसं पोसतलो रे तू? There's always a but inside that. Oh, it's all good, you're doing ministry, it's all good.
बरे हाँ सिस्टर तू सगळे बरे करता, तू इंटरसेशन करता, तू वर्शिप करता, बरे हाँ सगळे बरे हाँ, पण अशेंच तुझे हे कितें रे, हे कितें रे, आपलो वगत मागण्याच करतले तू आनी काय ना तुज्या लायफान? जियेतले कशे, खातेले कशे, वाडटले कशे, भुरग्यांक कशे वाडयतले, शिकयतले कशे, काजार कशे करतले भुरग्यांक? They came, they said it's good, but there are giants in the land. इतने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं और उनके सामने हम कीड़े के समान हैं। ऐसा वो लोगों को बोलने लगे, वो 10 लोग, और जोशुआ और कैलेब, ये 2 लोग जो थे, उन्होंने क्या कहा? हाँ ये देश बहुत अच्छा है, हाँ ये सही है कि वहां पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं, लेकिन हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको मार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो देश को हमें दे रहा है। हालेलुया। God said He is giving us the land. So no matter which is the giant that will come before us, God will see to it that we get the victory. Hallelujah. Hallelujah. जोशुआ और कैलेब, इन लोगों ने लोगों को समझाया, लेकिन लोग समझे नहीं। गुनगुनाहट करते 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 परमेश्वर ने बोला, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग गुनगुनाहट कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं हमको इधर ही मरने दो, इधर ही मरने दो, इधर ही मरने दो। हालेलुया। इधर ही मरने दो हमको, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, वो लोग हमको मारेंगे, हमको इधर ही, हमको क्यों मरने के लिए लाया है यहाँ पर? हमारा कांदा लहसुन कितना अच्छा था इजिप्ट में। और परमेश्वर ने कहा, जो उन्होंने कहा है वैसा ही होगा। वो लोग बोलते हैं ना कि उनको मरना है, वो सब लोग मर जाएंगे, और सच्चाई में वो मर गए। लिसन वेरी केयरफुली नाउ। Before God takes you to the promised land, you will experience wilderness. Again, before God takes you to the promised land, you will experience wilderness. वादा किया हुआ देश में जाने से पहले आपको जंगल में गुजरना पड़ता है, पड़ेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड इस जंगल में कैसा है? It's very important. When things are not working out for you, when the prophecies came, you were so happy. When the visions came, you were so happy. I saw Jesus telling me, I am going to take you here. I saw fire coming upon me. I saw oil coming upon me. You see, all these things very good, because God is saying, I'm going to do it for you. Hallelujah. मूसा ने भी अग्नि देखा था, अग्नि का दर्शन देखा था। Hallelujah. Moses saw the burning bush, but his eyes did not fall on the circumstances. His eyes were ever on that consuming fire. उसकी नजर सिर्फ परमेश्वर पर थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ इतना बात किया। You will experience wilderness, and that is the time you will think, हे किती जाता म्हज्या लायफान, देवान तर म्हाका वेंचून काडला, जाल्यार सगळे लोक म्हाका हेट करता, सगळे लोक म्हाका इतले लागीं आसले ते लोक सोडून गेले, म्हाज्या हातांनी पयशे ना, म्हजें काम गेलें, हांव कितें करूं? एक सुरपण म्हज्या लायफार येयला, कोण म्हाका सोजमून घेना, म्हजें कारण आसा तो लोक म्हाका सोजमना, हांव कितें करूं? अशें दिसतलें की देवानी म्हाका सोडला, देव पयस आसा, परमेश्वर दूर है, ऐसा लगेगा। मेरा जवाब मुझे क्यों नहीं मिलता है? और उस समय हमको सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के वादों को ना बोलना। Don't forget that God is still God. परमेश्वर वैसा ही है, वो बदला नहीं है। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. The children of Israel had the pillar of fire in the night time for them, and the cloud in the daytime to lead their way. अगर वो खो जाते, उनको वो अग्नि का खंबा था मार्ग दिखाने के लिए रात में, और दिन में वो बादल का खंबा था उनको राह दिखाने के लिए दिन में। 40 साल वो भटक गए, लेकिन बाद में यहोशुआ के द्वारा वो कनान देश में
जो कोई बच्चे थे वो बड़े हो गए, वो पहुंचे, लेकिन जो किसी ने गुनगुनाहट, लिसन वेरी केयरफुली, जो किसी ने गुनगुनाहट की थी वो उधर ही मर गए। क्या परमेश्वर ने उनको वादा नहीं किया था? गुनाह किसका था? परमेश्वर का गुनाह था। Then why is it that people blame God when things don't work out for them? देवान सांगलेले अशें करतलो पूण देवान माझे करूंक ना, देवान म्हाका सांडलो, देवान दोळे दाखले, देवान पाठ ओढली म्हणजे नो माय डियर पीपल, God is still there with you. It is you who have taken your eyes from the Lord. आपने आंखें को हटाए है परमेश्वर से. You have taken your eyes off the Lord and that is why you are feeling bad that God is not with you. परमेश्वर वहां है, वो बदला नहीं है. देखो सूर्य को, हर दिन आपके लिए परमेश्वर उस सूर्य को दिखाता है दिन में. उसी समय वो उठ जाता है, उसी समय वो डूब जाता है हर दिन. अगर ये सब परमेश्वर आपके लिए कर सकता है तो परमेश्वर क्या बदला है? ये हवा जो आप ले रहे हैं अंदर, आप से वो हवा उसने नहीं ली है. ये मास्क लोगों ने डाला है आपके ऊपर. परमेश्वर ने हवा को निकाला नहीं है. आपकी परिस्थिति है वो जो आप डरते हैं उससे. नजर हटाते हैं हम परमेश्वर से. उस समय वो अग्नि का खंभा और बादल का खंभा, आज यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है. हालेलुया, हालेलुया. उसने जंगल से मार्ग निकाला है आपके लिए. आपको सिर्फ उसके पीछे जाना है. आप कभी खोएंगे नहीं. आपको उसके पीछे जाना है. जैसे इजराइल के लोग वो बादल के खंभे को देखकर वो उठ जाते थे और उसके पीछे जाते थे, क्योंकि उसको रास्ता मालूम नहीं था. कहाँ है वो देश, उनको पता नहीं था. हम भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं कैसे होगा. लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा. परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे अनॉइंटिंग दूंगा. परमेश्वर ने कहा कि आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, आपके बच्चों को छुटकारा देगा. अगर परमेश्वर ने कहा है तो मुझे उसको सिर्फ उसके पीछे जाना है. I have to only follow the Lord. Hallelujah. So if you feel yourself stuck in the wilderness, if you feel yourself stuck in the jungle, the only thing you need to do is look unto Jesus. उसके ऊपर नजर डाल. गुनगुनाहट मत कर, उसके ऊपर नजर डाल. उसने हर टाइम उसके ऊपर देखा, उसकी ओर चला गया, पर्वत पर वो चढ़ा. उस समय एक ही मूसा को ही पर्वत पर जाने को मिलता है. लेकिन आज हम सब जा सकते हैं. हम सब जा सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. Listen, my dear people, all of you young people, all of you who got anointed today. Hallelujah. When God announced about Jesus in Matthew chapter 4 and in Luke chapter 4, when God announced about Jesus, he came out of the waters of baptism, right? बपतिस्मा होने के बाद, यॉर्दन नदी में उतरने के बाद उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, राइट? आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है और अभिषेक आ गया है. और यीशु मसीह को बाइबल कहता है कि the spirit of the Lord led Jesus into the wilderness. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेके गया. आपको भी परमेश्वर जंगल में लेके जाएगा. You will find yourself all alone in your faith with God sometimes. Akela. Alone you will be tested. Alone. Don't expect people in your family to understand you. It is your calling, my dear. It is your calling, individual calling. आपका खुद का बुलाहट है. It's not about whether your husband understands you or your children understand you, anybody understand you. It is your calling. Hallelujah. Hallelujah. आपकी बुलाहट है सिस्टर.
आपको लड़ना है इस बुलाहट के लिए. You got to do it. Jesus went alone in the wilderness. Nobody came with him. John the Baptist baptized him, but John the Baptist did not come with Jesus in the wilderness. आपका लीडर नहीं आएगा आपके जंगल में, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा. और यीशु मसीह लड़ा शैतान के साथ, बोल के कि इट इज रिटन, ऐसा लिखा गया है. इट इज रिटन. हर एक का वचन को लेकर लड़ा वो. हालेलुया. आपको भी लड़ना पड़ेगा. You got to fight it. Why? Because the promise is waiting for you. Fight for that. Keep your eyes on that vision. यीशु मसीह की नजर किस पर थी? शैतान आया, पूरा दुनिया निकाल लिया उसको. Worship me and I will give you the kingdoms of this world. सारे दुनिया के राज्य में तुझे दूंगा. Who is he to give out? Jesus everything. But Jesus only quoted the word. सिर्फ वचन वो बोला. It is written. It is written. आपको जानना है आपका परमेश्वर कौन है. If you know who is your God, you will never be shaken. My God. Sometimes you will not even feel the presence of God. You won't feel any tingling. You won't feel any goosebumps. Ella, yaarilla. कुछ नहीं होगा. You say, God, where are you? Listen, don't trust your feelings. You don't feel the presence of God. You don't have to feel it sometimes. He is there. Even if you don't feel Him. He is there even if you don't feel Him, even if you don't see Him, He is there. You got to just say, Lord, I know you are here with me. मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है. तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं है. इस जंगल में तू मेरे साथ है. और मैं जानता हूँ कि वो वादा किया हुआ देश में तू मुझे लेके जाने वाला है. I will see the promised land. I will live in the promised land. Hallelujah. And when you get there, you will still be tested. Don't think it's over. Just stand up in His presence. I feel such an anointing of God. Stand up in His presence. Oh. Surely Mandera Bashikiri Kanara Shikiri. परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है. हाथों को खोलिए प्लीज. My God, what a word. Thank you, Jesus. No, I'm not going to be stuck in the wilderness. 11 दिन का जर्नी, वो 40 साल लगा उनको जंगल में. भटक गए वो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया. गुनगुनाहट करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगे. They were even thinking, आम्ही असली ती गोरी असली थिंगा अशेपासून त्यांची चूक लागली. वेगीच देव तांकां बऱ्या देसान व्हरपाक आसलो, पूण तांकां उशीर जालो. 40 वर्सां लागली. 11 दिसांनी पावताली, पूण 40 वर्सां लागली. कित्याक तांणी देवाची नदर दवरली. And your people, I see the Lord is saying to you, very soon you will reach there. Very soon I'm taking you. Very soon you are coming into that place. And I see some of you have already come to that place. परमेश्वर ने already आपको उस जगह पर लाया है. God has already, you are already there. In a place where the presence of God is overflowing you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके लाइफ में फिल हो गई है. आपको कोई भी आपके परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता. हालेलुया, हालेलुया. The promised land is not about a place. It's not about a place. Listen, it is not about a place. It is not about going on the ship. It's not about going to Dubai. It's not about going to London. The promised land is a place where you are
Filled with the presence of God. It's the presence of God that, my dear people, is your promised land. It's a place where you experience the presence of God. It's a place where you are filled with Him. It's a place where you want Him more and more, and He satisfies you like no other. Hallelujah. वो उसकी उपस्थिति जो आपको भर देती है, और जितना वो भर देते हैं आपको, आप और भी चाहते हैं। ये ऐसा जगह पर परमेश्वर आपको ऑलरेडी लाया है और बहुत लोगों को लाने वाला है। My God, you will experience His presence, my dear people. और जब वो तुझे मिल जाता है, आपको पैसों की उम्मीद नहीं होगी। इस दुनिया की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ जो आपकी जरूरत है वो परमेश्वर में आपको मिलेगा। Everything is there in Him. Hallelujah. Come on. Just lift up your hands and tell Him, Lord, I want to be hungry for you more, Lord. I want to reach to that place, Lord God. As Moses went to the Mount of Sinai and he experienced your glory, I want to feel that, Lord. I want you, Jesus. दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से, दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तेरा ही हूँ। तुझको मैं क्या दे सकता हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे जरूर
your family. God says it and He does it. If you feel yourself stuck in the wilderness, trust in the promise of God. He said it, He will do it. You have to look at Him. And you have to say what He said. My God said it, He will do it. God said He is taking away those unwanted bondages in your life. Hallelujah. वो सारे जो बंधन हैं आपके लाइफ में, शैतानिक बॉन्डेजेस जो है, परमेश्वर ने कहा कि वो तोड़ता है आपके लाइफ से. अगर आपके फिजिकल आइज में आपने देखा नहीं, आत्मिकता में देखो. वही परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, आपका परमेश्वर है. He is God all by Himself. He doesn't need your help. He needs your obedience. My God, your financial situation, आपका जो पैसों का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम परमेश्वर ने कहा है कि आपको वो भरपूरी के देश में लेके जाने वाला है. भरपूरी, हालेलुया, भरपूरी. आपको अगर सूखा सूखा महसूस होता है, वो ही कहता है आपको कि मैं जंगल में राह बनाने वाला परमेश्वर हूँ. हालेलुया. यीशु के लहू के वजह से हमको सब कुछ मिला है. पुराने नियम में लोग गुनाहगार करते थे क्योंकि उनको जीवित परमेश्वर के साथ संबंध नहीं था. आज हमको क्या कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है. हमको कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर के पास नहीं रह सकते. मार्ग है, सत्य है, ओ जीवन है. मेरा यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है. सारे झूठ को निकालने वाला परमेश्वर मेरा है. मेरा यीशु सत्य है, झूठ को निकालने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है. मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर मेरा यीशु मेरा जीवन है. यस, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा प्रभु तेरे लिए. मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा प्रभु तेरे लिए. मैं जीऊंगा, मेरा यीशु मेरी ताकत है. मेरा यीशु मेरी आशा है. ना मैं मरूंगा, जीता रहूंगा. यीशु का मैं काम करता रहूंगा. ना मैं मरूंगा, जीता रहूंगा. यीशु का मैं काम करता रहूंगा.
all the discouragements going away right now. The Lord is breathing His fresh breath on you right now. प्रभु ताज़गी दे रहा है आपके आत्मा को, ताज़गी दे रहा है आपके आत्मा को, निराशापन से बाहर निकाल रहा है आपको, निराशापन से बाहर निकाल रहा है. It's taking you out of discouragement. Oh yeah, yes. That purse which is empty, the Lord is filling it. आपके वॉलेट में, आपके पर्स में जो नहीं है, परमेश्वर आपको देता है, भर रहा है, भरपूरी से भर रहा है. आपके सारे खालीपन को परमेश्वर भर रहा है. Come on. Get filled with His presence. Keep your eyes on Jesus, not on the money. Keep your eyes on Jesus, not on the blessings. Come on. Yes, God. See, Holy Spirit is touching you. Holy Spirit is touching you. Come on, Lord, do it, Lord. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. Faithful one, so unchanging. Ageless one, you are my rock of peace, Lord of all. I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. In times of trouble, you pick me up. You pick me up when I fall down. When I fall down, all through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. My hope is in you alone. मेरा भरोसा सिर्फ तुझे पर है. मेरा भरोसा सिर्फ तुझे पर है. धन्यवाद. प्रभु का वचन आपके अंदर आया है. धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु का वचन जीवित है. धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु का वचन सारी जंजीरें को तोड़ता है. धन्यवाद. प्रभु का वचन सारे बंधनों को तोड़ता है. धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु का वचन मेरे पैरों के लिए रोशनी है. धन्यवाद. प्रभु का वचन मेरे कदमों के लिए दिया है. धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु का वचन मेरी चट्टान है. धन्यवाद. हालेलुया. Oh, thank you, my Lord Jesus. Hallelujah.
शीरे बाका सिखरना बोशीरी खिलेगा सिखना अगर किसी के शरीर में कोई भी पीड़ा भी अभी चली गई है, it is gone in the name of Jesus. कोई भी तकलीफ आपकी जिंदगी में अभी इसी वक्त चली गई है यीशु मसीह के नाम में। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Your promises are true. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज तेरे वचन के लिए। आज तूने उनको भरपूरी से भर दिया है। हालेलुया। यही वचन को तेरे बच्चों के साथ पिता जाने दो पिता, अंदर उनका काम करने दो, हमारे अंदर पिता, हमारी लाइफ में हमारे परिवारों में काम करने दो पिता। और जो तूने वादा किया है वो जरूर हमको मिलेगा यीशु के नाम में। और हम ये ऐलान करते हैं कि हमको ऑलरेडी मिला है यीशु के नाम में। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। Your hands to the Lord. The Lord is good. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you.